So today we are going to discuss case study that will be coming in part C on shifts in demand and supply, and how to draw diagram and how to answer those case studies. So first I will again explain what is shifts in demand and supply and what are the various diagrams of it. And then I will discuss three case studies of the last 3 years, that is with semester 22, 23 and 24. And I have answer sheet also of two students, one of 22 and one of 23. Though they have scored around 65, 70 only. And last year one student scored 91. She has sent me her answer book of economics, but I am not able to get that. So once I find it, I will share that also, right? So which files I am going to use is, this is file number 15. The name of the file is increase, decrease in demand and supply, and price floor and price ceiling diagram is also there in it. Then there is this 2022 question paper named as Eco Midterm 22. Then 23 question paper is there, 24 question paper is there, and 2022 one of the students Eco Midterm sheet is there. She got around 60 something. In case study, she got 16 marks out of 20. And all numericals were right. Mostly she lost the marks in part A and here in question number 8. And one more paper is there, that is of 2023. This is of Dhanshri and she has got 67. Right. So in question number 12, maybe if it is case study, she has lost the marks there only. In the 11, she has got full marks. So we will discuss this papers also. 24 में एक स्टूडेंट को 91 आया था, वो पेपर मिला नहीं है, बट ये 3 पेपर भी पहले तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम्हारा 80% पेपर तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते। अब सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई, तो अभी तक सब लोग अवेयर है कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया, ये कर्व बनाया, बट ठीक है। This is supply curve, this is demand curve, and wherever they intersect with each other, that is the equilibrium point. This we are not going to discuss today. This I have already discussed. अब जो भी केस स्टडी होगा ना, तो क्या होगा, जैसे कि ये 22 का भी है केस स्टडी। केस स्टडी में they will give you one paragraph full about some economic event or some product, like this is on electric vehicle, and then they will ask you कि उससे क्या होगा, और वो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने तुम्हें बोले। तो ऐसे तुम्हें 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डिमांड और सप्लाई के उसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। तो इम्पैक्ट के लिए पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है, ये फाइल नंबर 15 जो मैं अभी शेयर करूंगा, इसमें मोस्टली ऑल पॉसिबल डायग्राम्स इंक्लूड आई हैव डन। यहाँ पे सारे डायग्राम इंक्लूड हो गए जो इम्पोर्टेंट केस स्टडी के लिए है। ये पॉइंट्स तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, इतना ये तो बहुत डिटेल में मैंने सब एरो वैरो सब कुछ है इसमें, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। तो हियर व्हाट यू हैव टू ड्रॉ कि जब भी अगर तुम्हें ऐसा मिलेगा कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, not because of price but because of any other reason, then you have to shift the demand curve to the right. सबसे पहले तो x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद ये d0 और ये s0 x0 या s, ये पहले बनाना है, और ये p0, this is your e0, the original equilibrium point, original price, and q0 original quantity, right? This is your original quantity. Now, अगर
डिमांड इंक्रीज हुआ तो राइट में शिफ्ट करना है कर्व, तो तुम्हें ये D1 पैरेलल टू दिस D0 यू हैव टू ड्रॉ द लाइन एंड देन यू विल फाइंड दिस न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से Q1 और P1 बस इतना ही बनाना है, ये मत बनाओ, Q2 मत बनाओ, ठीक है ना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। वैसे ही डिमांड डिक्रीज होगा तो नीचे हम बनाएंगे, तो ये E2 और Q2, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये खाली इक्विलिब्रियम वाला लाइन ड्रॉ करना है, ये सब में एक एक एक्स्ट्रा है, दिस इज सम फन टेक्स्ट बुक बट दैट इज फाइन। So you have to draw this arrow also. The demand is decreasing, and this is your new demand curve. ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही समझ जाएगा, but you can draw this arrow. The price is increasing, quantity is increasing, demand is increasing, here also decreasing. वैसे ये तो increase in demand, increase in and decrease in demand का था, फिर simultaneous change हो सकता है demand and supply में, both can change together, so both are decreasing, ये उसका डायग्राम है। See, DD is shifting to left, demand का लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई का भी लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दोनों डिक्रीज हो रहा है, बट इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स है कि इंक्रीज, अब ये इंक्रीज वाला है, बट इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहा है, डीडी डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, but if demand is increasing more, the distance between the two demand curve is more than the distance between the two supply curve, so the price will be higher. Quantity तो increase होगा ही क्योंकि दोनों का बढ़ रहा है, but price will increase if demand is increasing more than supply. But if supply is increasing more than demand, then quantity will increase but price will decrease. और अगर increase in demand and increase in supply is same, if the distance between the old demand curve and new demand curve and between the two supply curve is same, then price will remain same. वैसे ही डिक्रीज में भी प्राइस सेम होगा, अगर जो डिस्टेंस है वो सेम है तो डिमांड और सप्लाई का, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैटर नहीं करेगा केस स्टडी में, क्योंकि केस स्टडी में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा कि कितना डिमांड बढ़ेगा या कितना सप्लाई बढ़ेगा अगर दोनों साथ में चेंज हो रहा है तो, बट यू शुड नो द डायग्राम, हियर द डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस विल डिक्रीज। तो ये सब डायग्राम सिर्फ नॉलेज के लिए है कि प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, if both are decreasing, here increase in demand is more than decrease in supply, here demand is increasing and supply is decreasing, तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है, डिमांड बढ़ने से भी प्राइस बढ़ता है, सप्लाई कम होने से भी प्राइस बढ़ता है, तो द प्राइस देखो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वेरियस। और यहाँ पे भी एक केस स्टडी है जो हम डिस्कस करेंगे, और ये तो प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग का डायग्राम है, और इसका कुछ थियोरी है, जो तुम लोगों को अगर थियोरी क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम और ये इतना भी लिखना काफी है, इतना तो याद होना ही चाहिए, तो ये भी तुम लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी है, पहले ये भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2022 का क्वेश्चन पेपर, ये मैं अभी आज अपलोड भी कर दूंगा ड्राइव पे, तो तुम लोग अगर ये पेपर देखोगे तो कितने क्वेश्चन तुम लोगों को अभी भी आ रहे होंगे, राइट। ये तो कंज्यूमर सरप्लस वाला है जो हमने किया था, कंज्यूमर सरप्लस, ये पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे है, और ये क्यूडी और क्यूएस दिया है, और प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर पे है, राइट। एंड ये तो अभी कॉस्ट वाला है जो हमने किया नहीं है, अगर तुम लोगों को सिलेबस में होगा तो, ये वाला भी प्रोडक्शन का है, तो भी सिलेबस में है तो वो बाकी है अभी हमारा, और ये वाला जो हमने किया था एमआरएस कि वो इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर है कि नहीं है,
राइट, ऑल दिस वी हैव डन। और ये भी प्रोडक्शन का है, वो अभी कुछ सिखाया नहीं है। एंड दिस इज द सेम, टी कॉफी दो प्रोडक्ट दिया है। फाइंड आउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। हियर क्यूडी एंड क्यूएस इज गिवन। तो तुम्हें कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी फाइंड करना है। दिस पूरा पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या क्या ये इलास्टिसिटी वाला है, राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रेवेन्यू पे उसका क्या इफेक्ट होगा। बट दिस इज योर केस स्टडी, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। 15-15 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं इसमें, बहुत छोटा सा है केस स्टडी। तो हियर high fuel prices for demand for CNG vehicles से मारुति, ये मारुति का केस स्टडी है कि फ्यूल प्राइस बढ़ने से सीएनजी व्हीकल्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मारुति सुजुकी is witnessing strong demand for CNG powered vehicles and expects more than 80% growth in sales of such vehicles this fiscal, said Shashank Srivastava, Senior Executive Director, Marketing and Sales. This is in the backdrop of pump prices of petrol and diesel hovering at all-time high. क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है जब ये केस स्टडी हुआ था, राइट। और इसकी वजह से जो सीएनजी है उसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे यहाँ पे इसमें लिखा है केस स्टडी में अभी तक तो। और इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर जो कि मारुति है, sold about 1.6 lakh CNG vehicles in financial year 21 because this is 22 paper and expects this number to climb to about 3 lakh in the current financial year. जो और बढ़ेगा। Generally, the increase in fuel prices impacts consumer sentiment negatively. However, one good thing which has happened for us is that this has led to increase in the demand for CNG. पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो सब लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये है वो है, इतना बढ़ गया। बट इन लोगों के लिए, मारुति के लिए इसलिए अच्छा है कि जो इनकी सीएनजी व्हीकल्स है और उसका डिमांड बढ़ गया है और सीएनजी प्राइसेस उतना ऊपर नहीं गया है। पेट्रोल डीजल का जितना गया है उतना सीएनजी का नहीं गया है, राइट। और रनिंग कॉस्ट जो है सीएनजी का वो बहुत कम है। He said that in addition to the surge in fuel prices, the increase in the network of CNG stations had also helped the growth. In the 6 months ended September, the company sold 83,000 CNG vehicles. CNG vehicles accounted for 11.5% at 7.6 महीने में 14% of total sales और 83,000 vehicles बेच दिया। और एक और रीजन ये है कि सीएनजी के स्टेशंस भी अभी इंक्रीज हो गए। Asked about sales during the Navratras, Mr. Srivastava said booking and inquiries grew 11 to 13%, while retail sales were down by 20% because of the non-availability of stock at the dealership amid the semiconductor shortage. Semiconductor shortage का उसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गया था, तो जो स्टॉक था वो डीलर्स के पास था नहीं, इसलिए रिटेल सेल्स कम हुआ है। तो इंक्वायरीज और बुकिंग तो इंक्रीज हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर पेट्रोल एंड सीएनजी रिलेटेड गुड्स? तो आर पेट्रोल एंड सीएनजी रिलेटेड गुड्स? कैन एनीवन टेल, क्या ये लोग रिलेटेड गुड्स है कि नहीं है? गौरव और शिखा, वही थे लोग। यस, इसका आंसर क्या है? यस, petrol and CNG are related goods. If yes, what is the type of relationship between them? They are substitute goods. कि पेट्रोल की जगह हम सीएनजी यूज कर सकते हैं ऐसा फ्यूल, तो दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। वुड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है प्राइस इलास्टिसिटी?
हाँ, बोलो अभी तुम लोग फटाफट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ये भी मैंने बोला था कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। याद है क्या, शिखा है कि नहीं है? तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ, तुम लोग शायद आज आंसर देने के मूड में नहीं हो। हाँ, what would be the sign of cross price elasticity between CNG and CNG cars? देखो, ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो पेट्रोल एंड सीएनजी है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो उनका तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है। बट सीएनजी और सीएनजी कार्स जो है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कि सीएनजी कार खरीदोगे तो सीएनजी भी खरीदना ही पड़ेगा, तो उनका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है। तो उनका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। What would be the impact on demand curve for CNG car if petrol prices increase? तो यहाँ पे आ गया कि डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट होगा पेट्रोल प्राइस के बढ़ने से सीएनजी कार के डिमांड कर्व पे। तो ऑब्वियसली है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो सीएनजी कार का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि लोग सीएनजी कार ज्यादा खरीदेंगे, पेट्रोल कार कम खरीदेंगे। तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, यानी इंक्रीज इन डिमांड कर्व वाला डायग्राम बनाओगे, जो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था। यानी यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस डायग्राम द फर्स्ट ड्रॉप। ये पॉइंट नहीं बनाना है Q2 वाला। और तुम लोग लिखोगे डिमांड ऑफ सीएनजी कार विल इंक्रीज, therefore the demand curve will shift towards right as shown in the diagram from D0 to D1। ये स्टूडेंट में भी क्या लिखा है और कितने मार्क्स दिए है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पार्ट सी, yes, petrol and CNG are related goods as price of one product is affecting the other product. They are perfect substitutes of each other. As the price of petrol rises, the demand for CNG increases. Cross elasticity will be positive, जो मैंने बोला, as they are substitutes, and cross elasticity of substitute goods is always positive। ठीक है ना? फिर था substitute goods है पॉजिटिव है, फिर था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सीएनजी एंड सीएनजी कार क्या होगा? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सीएनजी एंड सीएनजी कार वुड बी नेगेटिव एज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमेशा नेगेटिव होता है। तो पार्ट ए तो इसने बराबर लिखा है, जो जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट शो करने का डायग्राम, तो डायग्राम इसने बनाया है कि नहीं देख लेते हैं। नहीं तो डायग्राम तो मैंने बता ही दिया, राइट। If the petrol price will increase, the demand curve for CNG car will shift rightward, that is demand will increase। तो इसने वो तो बनाया है, और इसने वो सप्लाई कर्व बनाया भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने क्वेश्चन में ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला था कि सप्लाई कर्व पूरा इक्विलिब्रियम बना के बताओ और प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी बताओ, ऐसा भी नहीं बोला था। बट इसीलिए इसमें 2 मार्क्स काट दिए सर ने या फैकल्टी ने, 15 में से 13 मार्क्स दिए बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम ओनली। ठीक है ना? तो डायग्राम तुम लोगों को ऐसा बनाओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा कि ये राइट में शिफ्ट है। सप्लाई कर्व भी बनाना है, पीओ Q0 ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बताना है, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, न्यू क्वांटिटी एंड न्यू प्राइस भी बताना है। सो दिस इज द इंक्रीज इन डायग्राम। So this question was very easy। इसमें किसी को कुछ डाउट है? द पार्ट ए ऑफ द केस स्टडी, एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट? अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन caused by the COVID-19 pandemic, employment and individuals' income were falling. What was the impact on demand curve for automobiles due to this?
Explain your answer using the concept of income elasticity of demand. इकोनॉमिक स्लोडाउन में कोविड-19 पेंडेमिक में ऐसा लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट और इंडिविजुअल इनकम वेर फॉलिंग. तो बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक इनकम फॉल हुआ. तो इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलती है? अभी ये ऑटोमोबाइल्स क्या है? ऑटोमोबाइल्स इज व्हाट योर लग्जरी गुड्स, ऐसे बोल सकते हैं. तो इसका डिमांड भी डिक्रीज होगा बिकॉज इनकम कम होगा. तो ये नॉर्मल गुड्स भी बोलेगा, इसको नॉर्मल या लग्जरी दोनों मैंने बोला था सेम होता है, दोनों के लिए पॉजिटिव है. इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल और लग्जरी गुड्स, राइट. सो इफ इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? If income increases, demand for these goods will increase, and if income decreases, demand for these goods will decrease. So therefore, the impact on the demand curve for automobiles will be demand curve will shift towards left, and the demand for automobile will decrease due to the fall in income. तो ये वाला डायग्राम बनाओगे, ये लाइन खाली नहीं बना. Decrease in demand curve. The original equilibrium point is here. This is original demand curve V0, V0. This is the supply curve and demand will decrease. So D1, 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 D2. This is your new demand curve, which is shifting to left because of income, not because of price. और ये शिफ्ट होगा, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी और जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगी बिकॉज डिमांड हैज डिक्रीज. तो दिस वाज 2022. तो इसमें बहुत ही इजी केस स्टडी था, इसका सॉल्यूशन भी है जो मैं बाद में भेज दूंगा, राइट. बट एज द स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग आल्सो इन द ग्रुप आल्सो, है ना. और सब लोग ने अभी तक यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है और अभी तक शायद कोई पढ़ाई को लेके सीरियस भी नहीं हुआ है. मिड सेमेस्टर एग्जाम का तो थोड़ा टाइम ही बचा है. तो आई विल जस्ट बी अपलोडिंग क्वेश्चन पेपर्स और जो भी मुझसे मांगेगा उसको मैं डीएम में, ग्रुप में मांगना है, मुझे डीएम करना है जिसको भी ये नोट्स चाहिए बाकी, तो आई विल सेंड देम देयर ओनली. कौन सी चीज का नोट्स बोल रहा? ये जो भी मैं केस स्टडी के पेपर्स और सॉल्यूशन है ना, जो पेपर्स एंड ऑल, बिकॉज के स्टूडेंट्स आते भी नहीं है, राइट. यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है और अभी तक तो किसी कोई सीरियस भी नहीं है पढ़ाई को लेके और कोई रिस्पॉन्स. 28 तारीख से देखेगा ना आप, फिर व्यूज सब आते रहेंगे और क्या. वो तो ठीक है, और सब्सक्राइब भी नहीं किया और आज भी देखो कोई अटेंड भी नहीं किया, राइट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. मेरा लेक्चर तो अभी मैं तो सोच रहा हूँ ये अपलोड भी मैं बाद में ही करूंगा जब स्टूडेंट्स लोग मांगेंगे कि देखना है. ऐसे तो थोड़े बहुत लोग देखते हैं जब तो आप इसका जो लिंक होगा वो मेरे को भेज देना, मेरा कुछ चीजें तुम लोगों को तो मैं दे दूंगा, राइट. हाँ, ये लिख दूंगा कि भाई ग्रुप में ही मैं भेज रहा हूँ और तुम लोगों को जिसको चाहिए दो टू वांट टू व्यू तो एक बार मैं भेजता हूँ, राइट. जस्ट थिंकिंग बिकॉज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब ये बात है कि दे आर नॉट एनी कि कुछ ये नहीं कि भाई कब लेक्चर क्या है क्या नहीं है, बिकॉज मैंने वो नोट्स भी फ्री रखा है ना. हाँ भी ओपन है तो नोट्स भी मिल जाते हैं. अभी रिकॉर्डिंग चालू है ना. हाँ चलेगा, स्टूडेंट्स को सुनने दो, नो प्रॉब्लम, चलेगा. बट स्टिल ओके, बट स्टिल आई वांट कि भाई डाउट्स पूछो, कोई सुने लेक्चर्स. एग्जाम टाइम पे करेंगे तो ये सब होने नहीं वाला है और अभी बहुत कम दिन बचा. मतलब ये जो बहुत टॉपिक्स जो है ना बहुत बचे हैं, एक एक दो दो दिन में ये सब सुन नहीं सकते ना ये लोग जो भी बात में करने वाले. तो ठीक है, ये वाला तो तुम्हारा मिस हुआ है तो सुन लेना, ठीक है. ये बहुत नहीं, मेरा थोड़ा सा मिस हुआ क्योंकि शायद से मैं पापा के पास बैठ गई थी, कुछ बुला रहे थे वो मुझे. तो ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम लोग एक और पेपर डिस्कस करते हैं 23 का, ठीक है ना. 23 का ये पीडीएफ है, इसमें भी मैं डायरेक्ट केस स्टडी पे आ जाता हूँ. एंड जो भी ये पास्ट पेपर्स के मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, ये मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालने ही नहीं वाला, ठीक है ना. पास्ट पेपर्स पे जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना
क्योंकि ये वैसे भी एग्जाम को 2-4 दिन ही बचेंगे. आई विल सी इफ देयर इज गुड रिस्पांस, देन ओनली आई विल पुट ऑन द यूट्यूब दिस. तो यूट्यूब पे ना डाल के तो फिर आप मतलब जो है मतलब जो आपसे जेन्युइनली जो मांगना तुम पार्टनर्स जो तो हो जो अटेंड करते हैं उन लोगों में मेल पे भेज दूंगा ये. राइट. ठीक है, तो सिर्फ ठीक. तुम्हारे ईमेल आईडी से एसएस होगा. और दोस्त हु आर रिस्पॉन्डिंग और दोस्त हु आर वाचिंग, हाँ, यहाँ वही बात है और क्या ही बोल वो सकते. लोग लाइव लेक्चर में आएंगे तो उनको समझेगा कि ये इम्पोर्टेंट है. राइट. हम्म. अब ये देखो ये केस है शिफ्ट इन. यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स ऑफ मिल्क इंडस्ट्री इज वेरी इंट्रिग्यूइंग इन इंडिया. Despite India being a country with high livestock population, the story of milk in India was one of shortages. यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मिल्क इंडस्ट्री के बारे में है कि इंडिया एक हाई लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है. लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स. तो इंडिया में काव बफेलो ये सब तो बहुत ज्यादा है. और द स्टोरी ऑफ मिल्क इन इंडिया वाज वन ऑफ शॉर्टेजेस. फिर भी सप्लाई कम पड़ती थी इंडिया में, ऐसा यहाँ पे लिखा है. मिल्क प्राइसेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वेर वेरी हाई. क्यों? क्योंकि मिल्क कम था. जबकि इंडिया में तो ऐसे बोलते हैं ना, दूधो नाओ फूटो फलो, यानी दूध से नाओ भी बोलते हैं कि इतना दूध बहुत पहले हुआ करता था इंडिया में. बट ये बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज ए शॉर्टेज एंड मिल्क प्राइसेस इसीलिए बहुत ज्यादा थी. इंडिया वाज एन इंपोर्टर ऑफ मिल्क. क्योंकि मिल्क इंडिया में कम प्रोड्यूस होता था, इंडिया इंपोर्ट करती थी मिल्क को. वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई मिल्क प्राइसेस वाज कॉस्ट ऑफ कैटल फीड. और जो चारा होता था वो भी बहुत महंगा था क्योंकि सूखा पड़ रहा था इंडिया में. उससे एनिमल को फीड करने के लिए जो कॉस्ट है वो लाना पड़ता था. यानी ग्रेजिंग जो बाहर लेके जाओ जंगल में वहां से कर लिया वैसा नहीं था, खरीदना पड़ता था. एंड वर्ल्ड में भी मिल्क का प्राइसेस बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ अ मैड काउ डिजीज. मैड काउ डिजीज करके हो गया था कि विच मेड इंपोर्ट कॉस्ट. काउ लोगों को डिजीज हो गया था जिसकी वजह से आधा मिल्क सब वेस्ट हो रहा था. इंडिया डेयरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन द फेट ऑफ फ्यू लार्ज मिल्क कंपनी. कुछ ही अच्छी मिल्क कंपनीज थी जिसपे पूरा इंडिया का मिल्क इंडस्ट्री डिपेंड कर रहा था. द सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज आफ्टर द व्हाइट रिवॉल्यूशन. फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन आया. ये बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑपरेशन फ्लड. इसमें क्या किया इसने, ये जिसके पास मिल्क कम था इंडिया के पास, उसने वो नेशन को ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन बना दिया. कैसे? एट द बेडरॉक ऑफ ऑपरेशन फ्लड, विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव. हर गांव में मिल्क प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई जो क्या करती थी, गांव के सारे दूध वालों से पूरा दूध ले लेती थी ताकि उनको यहाँ वहां बेचना नहीं पड़े. और उनको जो भी इनपुट चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए, जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी अवेलेबल करवाती. ये रिफॉर्म से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई इंडिया में इंक्रीज हुआ और इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क बन गया जो पहले इंपोर्टर था. डिमांड साइड टू लॉट ऑफ चेंजेस केम इनटू पिक्चर. ये तो सप्लाई साइड हो गया कि सप्लाई इंक्रीज हुआ. डिमांड साइड क्या हुआ? देयर वाज अ राइज ऑफ अ वीगन कल्ट व्हिच बायकॉटेड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ये वीगन भी बहुत शुरू हो गया ना आजकल 4-5 साल से. हाँ. वीगन मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स हम नहीं खाएंगे. राइट. तो यहाँ पे 2023 में 100 मिलियन वीगन्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन वीगन्स हो गए. People started experiencing lifestyle like diseases like कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज भी होने लग गई लोगों को आजकल ज्यादा. तो इससे क्या हुआ? क्या इससे मिल्क पे इफेक्ट होगा? मिल्क की डिमांड पे इफेक्ट होगा? हाँ. होगा ना. क्या होगा? मिल्क का डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. यस. और ये कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज की वजह से क्या हुआ? काउ मिल्क इज लिंक्ड टू टाइप 1 डायबिटीज एज अ थियरी. ये भी एक पॉपुलर हो गया कि काउ मिल्क से डायबिटीज 1 होता है, टाइप 1 डायबिटीज. And it was believed whole fat dairy products can have the unwanted health effect of increasing your LDL cholesterol levels.
they are high in saturated fat and cholesterol. This disease discouraged consumers to move away from milk consumption. There were alternatives to dairy milk that emerged, और डेयरी मिल्क की जगह सोया मिल्क आ गया. आलमंड मिल्क तो चलो बहुत महंगा होता है, बट आलमंड मिल्क भी था. And soon milk demand started changing. The prices of milk kept cooling down. अब prices cool down हो गया मिल्क का, क्योंकि डिमांड कम हो रहा है. बट एक्चुअल में तो ऐसा हुआ नहीं है ना. प्राइसेस तो बढ़ा ही है लास्ट 30 साल में. मेरा जो व्यू है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि मिल्क का प्राइस मैं ऐसे बोलूं कि हाँ लास्ट 2-5 साल में कम हुआ है. हाँ. बट ये केस स्टडी है, ठीक है, केस स्टडी दिया है. प्रैक्टिकली तो मिल्क का प्राइस कभी कम हुआ ही नहीं है जहां तक मेरा नॉलेज. The prices of milk kept cooling down as this new alternatives to dairy milk started becoming a trend. तो ये तो पूरा केस स्टडी था. यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही पूछा है. After the white revolution, what were the factors on both demand and supply side that changed India to be a leader in milk production? While listing out each factor, illustrate with suitable diagrams how it impacted the demand and supply curves in the dairy milk industry. देखो, हर फैक्टर को हमें ढूंढना है और हर फैक्टर का डिमांड सप्लाई पे क्या इफेक्ट हुआ, वो सुटेबल डायग्राम, यानी हर फैक्टर के लिए एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है. सुटेबल डायग्राम्स है, डायग्राम्स. आफ्टर द व्हाइट रिवॉल्यूशन व्हाट वर द फैक्टर्स. उसके पहले नहीं, तो इसके पहले तो नहीं. यहां से तो पहला क्या फैक्टर था, ये पैरा में क्या फैक्टर था, कुछ शिखा तुम बताओ, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं था इसमें, वो तो ऊपर था ना सेकंड पैरा में. अच्छा, ओके. ये था कि आफ्टर व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई ना विलेजेस में, और वो लोग मिल्क ले लेते थे और वो लोग इनपुट और सर्विसेज भी देते थे, इसलिए सप्लाई ऑफ मिल्क इंक्रीज हुआ. दिस रिफॉर्म, इन शॉर्ट हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ढूंढना है ना. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या है, रिफॉर्म्स इन द डेयरी इंडस्ट्री. क्या लिखोगे तुम लोग? इसका भी सॉल्यूशन तो है, पर इसको तो मार्क्स मिला नहीं है शायद, देख लेते हैं. इसने नहीं किया होगा ये, आई डोंट. बस टाइम भी नहीं बचता है इसका, बिकॉज केस स्टडी में ना देखो कोई भी स्कोर नहीं कर पा रहा है. फैक्टर्स ऑफ डिमांड इसमें एटलीस्ट 2 मार्क्स दिया है, इसलिए डायग्राम वायग्राम बनाया ही नहीं. शायद टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि ये लास्ट पेज है, ठीक है ना. तो ये सब तो इसमें से तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, यहाँ से ही मैं बताता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है, यहाँ पे आफ्टर द व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिफॉर्म इन द डेयरी इंडस्ट्री. रिफॉर्म्स इन द डेयरी इंडस्ट्री. व्हाट वेर दोस रिफॉर्म्स? की फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स, मिल्क प्रोड्यूसर के कोऑपरेटिव्स फॉर्म हुए, एंड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट and inputs were made available. And all these factors, because of all these factors, the supply of milk increased in India. So the effect of these reforms were that the supply increased, therefore supply curve will shift towards right. तो तुम्हें कैसा डायग्राम बनाना है इसमें? इंक्रीज इन सप्लाई का बनाना है. खाली इंक्रीज इन सप्लाई का मालूम है ना तुम लोगों को? हाँ, इंक्रीज इन सप्लाई यानी बस ये डी और एस तो बनाओगे, ये डी नया नहीं बनाओगे, डी वाई, खाली सप्लाई नया बनाओ. तो ओनली सप्लाई इंक्रीज. तो सिर्फ सप्लाई इंक्रीज होगा, ये पुराना डी रहेगा, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे दिस विल बी योर न्यू इक्विलिब्रियम, राइट. तो ओनली यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. द ओरिजिनल डी. हाँ, सर इसका सॉल्यूशन आप दोगे? इसका ना कैसे तो लिखना है? नहीं है, ये मुझे अलग से हैंड रिटन बनाना पड़ेगा.
बट मैं बोल रहा हूँ ना तो सुन के ही लिख लेना, ये इजी तो है, मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, मुझे पूरे पेपर्स का बनाना ही है, बट ये ठीक है तो मैं खाली केस स्टडी डिस्कस कर रहा था। तो ठीक है। बट मैं अभी बता भी रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, बट स्टिल मैं बना भी दूंगा, अभी टाइम है, ठीक है। और खाली करना क्या है, सप्लाई कब को शिफ्ट करना है वो तो समझ गया ना, और लिखना क्या है जो मैंने बोला वो तो तुम लेक्चर वापस सुन के नोट भी कर लेना, कि एक वो फैक्टर हो गया कि रिफॉर्म्स इन द डेयरी मिल्क, और क्या रिफॉर्म्स, कि कॉपरेटिव्स वेर फॉर्म्ड एंड दे प्रोवाइड इनपुट मॉडर्न मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे आया ये, द अदर फैक्टर इज कि वीगन कल्ट, द अदर फैक्टर इज वीगन कल्ट। अब वीगन कल्ट की वजह से क्या हुआ, द डिमांड फॉर मिल्क डिक्रीज, क्योंकि देखो 10 ही मार्क्स का है, 2-3 फैक्टर ही है, ज्यादा नहीं है, तो डिमांड फॉर इंक्रीज, तो इसमें डिक्रीज इन डिमांड का बनाना है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें ये बी पॉइंट नहीं ड्रॉ कर, बस बाकी पूरा डायग्राम। तो डिमांड डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ लोग वीगन बन गए, राइट। तो दूसरा एक और फैक्टर क्या है, डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज डिजीज, एंड रिसर्च which said कि cow milk is linked to this type of disease, और इसकी वजह से भी डिमांड फॉर मिल्क कंजम्पशन डिक्रीज। तो एक फैक्टर क्या बोलोगे, वीगन कल्ट जिससे डिमांड फॉर मिल्क डिक्रीज हुआ, रिफॉर्म्स जिससे सप्लाई इंक्रीज हुआ, तीसरा फैक्टर डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज के डिजीज होने लग गए जिससे डिमांड का डिक्रीज हुआ, शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स लेफ्ट, दोनों में सेम ही है। और तीसरा एक फैक्टर और जो है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सोया मिल्क एंड almond milk alternatives, substitutes were available, because of which also the demand decreased। तो एक्चुअली दो ही इम्पैक्ट है, एक है कि ये जो फैक्टर्स है, ये वाला ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला रिफॉर्म्स, उससे सप्लाई इंक्रीज हुआ, और ये जो तीन फैक्टर है, वीगन disease, cholesterol, diabetes, and alternative products, substitute products, availability of substitute products, ये तीन फैक्टर की वजह से डिमांड कम होगा। तो ये तीनों फैक्टर का एक ही डायग्राम, टोटल 2 डायग्राम बनाओगे तो भी सिंपल है, बस फैक्टर्स मेंशन ये करने हैं जो मैंने बोला। यस, कोई डाउट है? यस शिखा। हाँ वो आपने बोला ना डिजीज वाला बात, वो कैसे इसमें आ सकता है, मतलब डिजीज लिखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, पीपल स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग डिजीज लाइक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। नहीं नहीं, दूसरा वाला जो आपने बोला था जो मिल्क से हो रहा था। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना टाइप 1, ये भी लिखोगे ना, मतलब फैक्टर्स में खाली डिजीज भी लिख दोगे ठीक है, मार्क्स तो, क्योंकि अच्छा। देखो टोटल 10 मार्क्स है, 2 डायग्राम है, फैक्टर्स और डायग्राम में काफी है, बट ये डिजीज की वजह से हुआ, बट ये डिजीज तो हुआ लोगों को, बट एक जो थियोरी या रिसर्च आया ना कि टाइप 1 डायबिटीज काउ मिल्क से हो रहा है, इसीलिए और ज्यादा डिक्रीज हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है, समझा। राइट, कि होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हेल्थ पे बुरा असर डालते हैं, ऐसा जो थियोरी आया उससे ज्यादा इफेक्ट हुआ, राइट। तो इसलिए लिखा है दिस डिजीज इज डिस्करेज कंज्यूमर्स, है ना। तो ये डिजीज लिखोगे तो भी ठीक है, बट जस्ट वही है, हो गया। तो 2 डायग्राम है, एक इंक्रीज इन सप्लाई और एक डिक्रीज इन डिमांड का, और ये तीनों फैक्टर के लिए एक ही डायग्राम, क्योंकि सेम है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इजी है केस स्टडी, देखो कुछ हार्ड नहीं है। 22 का भी इजी था, तुम सुनोगे तो वो तो और भी इजी था। 23 का ये क्वेश्चन भी इजी है। अब ये वाला मेन है, इसमें भी देखो लॉजिक ही है कि given the dynamics of milk demand and supply, what would happen to the demand and supply dynamics of mithai or Indian sweet industry? Explain with a diagram. क्योंकि स्वीट जो है वो मिल्क से बनती है, तो स्वीट इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा ये सब चेंजेस का, जो हमने यहाँ पे देखा। कुछ व्यू तुम लोग अपना दोगे? क्या पूछा आपने, फिर से बोलो।
ये जो अभी बी पार्ट है ना, इसमें बोला है कि मिल्क का डिमांड और सप्लाई, तो हमने देखा क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट, पार्ट ए में। तो स्वीट इंडस्ट्री के सप्लाई और डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा एक डिमांड डायग्राम। हाँ, डिमांड भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। स्वीट का। मतलब अगर अगर हम उस वे में जा रहे हैं कि अगर मिठाई ही चल, मतलब मिठाई वाले इंडस्ट्री में है तो डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा ना, यही होता है ना। नहीं, ऐसा अब नहीं पता है। नहीं, पहले गलत। देखो एक एक फैक्टर को लो, कि पहला फैक्टर ये क्या है कि सेल से सप्लाई। रिलेटेड पे आप बोल रहे हो, नहीं, मेरे को एक एक लगा फैक्टर अलग से। नहीं, ओवरऑल ही बोल रहा हूँ। लेकिन जब भी ऐसा आता है ना क्वेश्चन, तो देखो सप्लाई तो बढ़ रहा है। ए पार्ट में हमने क्या बोला, सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रहा है। ए पार्ट में ये बोला ना, मिल्क का सप्लाई बढ़ रहा है और मिल्क का डिमांड कम हो रहा है, राइट। हाँ, और लास्ट लाइन में क्या लिखा है वहां पे, प्राइजेस ऑफ मिल्क केप्ट कूलिंग डाउन। ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, न्यू अल्टरनेटिव्स है, तो दूध का हम्म। भाव कम हो गया, राइट। हम्म। और दूध मिठाई इंडस्ट्री के लिए क्या है, इनपुट है, रॉ मटेरियल है। हाँ। तो रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो हम ज्यादा बनाएंगे और सप्लाई इंक्रीज होता है। हाँ। तो ये तो लिखना ही है, सप्लाई इंक्रीज होगा जो तुमने बोला, राइट। हाँ। तो हम लिखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे, गिवन द डायनेमिक्स व्हाट वुड हैपन, खाली लिखा है, रीजन नहीं दिया व्हाई। तो व्हाट वुड हैपन, द सप्लाई विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क, है ना, हम्म। एंड इंक्रीज इन सप्लाई एंड ऑल्सो डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मिल्क। मिल्क का सप्लाई भी बढ़ रहा है और डिमांड भी कम हो रहा है और कॉस्ट भी उसकी वजह से कम हो रहा है। तो बिकॉज मिल्क इज एन इनपुट और रॉ मटेरियल फॉर मिठाई इंडस्ट्री, therefore the मिठाई इंडस्ट्री will purchase more milk and they will produce more. ऑफ मिठाई। Yes, the supply will increase. अब डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, ये कंफ्यूजन वाला है। दोनों व्यू है मेरा, लास्ट ईयर भी मैंने डिस्कस किया था, बट इसको मैंने चैट जीपीटी नहीं किया। लास्ट ईयर भी किसी ने नहीं किया लगता है, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी 2-3 महीने से यूज कर रहा हूँ, उसके पहले करता नहीं था। तो ये क्वेश्चन में देखो, मेरा जो एक व्यू है फर्स्ट, वो ये है कि डिमांड भी डिक्रीज होना चाहिए। पर डिमांड डिक्रीज कैसे होगा, ऑलरेडी सप्लाई इतना दोनों हो है, रहा है तो मिठाई का। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। कि मेरा एक व्यू डिमांड डिक्रीज होगा वो इसलिए है कि द मिठाई जो है ना, वो तो हेल्थ के लिए और खराब है, डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो जब मिल्क लोग नहीं पी रहे हैं, तो वीगन वाले तो मिठाई भी नहीं खाएंगे। जिनको डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल है वो लोग भी मिठाई नहीं खाने वाले हैं, राइट। तो वो सब अगर हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे तो मिठाई का डिमांड कम होगा। बट वो आंसर रॉन्ग है। क्यों पता है, इन लोगों ने यहाँ पे बोला है गिवन द डायनेमिक्स ऑफ मिल्क डिमांड एंड सप्लाई। हमें बाकी फैक्टर्स की वजह से मिठाई पे क्या इम्पैक्ट होगा वो नहीं बोला है। मिल्क का डिमांड और सप्लाई का जो डायनेमिक्स है उसकी वजह से क्या होगा। तो सिंपल है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा और सप्लाई बढ़ेगा, तो लोग, जो कॉस्ट ऑफ मिठाई है वो कम हो जाएगा, तो लोग ज्यादा मिठाई खरीदेंगे, है ना, राइट। तो डिमांड ऑफ मिठाई विल ऑल्सो इंक्रीज। बट मिल्क नहीं पी रहे हैं जो, वो लोग मिठाई भी नहीं खाएंगे, एक वो भी व्यू है। समझ में आया क्या, समझा क्या, दोनों व्यू है। तो रुको, हाँ, तो लिखना एग्जाम में दोनों है कि एक ही। एक ही लिखना पड़ेगा, अच्छा। दोनों नहीं लिख सकते। हाँ, तो रुको, इसको मैं अभी चैट जीपीटी कर लेता हूँ लाइव ही, और वो क्या आंसर देता है वो भी देख लेते हैं। ए पार्ट का तो हमारा क्लियर ही है, कोई दो व्यू नहीं हो सकता है, बट इसमें क्योंकि दो व्यू हो सकता है, राइट। देखो कुछ भी आज नहीं मिलता है ना, तो चैट जीपीटी बेस्ट है। बस इमेज डालो, वॉइस डालो, आ जाएगा सॉल्यूशन। इसमें भी और पढ़ के एक्सप्लेन कर देते, देखो
ये मैं चाहिए तो सेव भी कर लूंगा। आफ्टर द व्हाइट रिवॉल्यूशन व्हाट वर द फैक्टर्स, तो लिखा है ऑपरेशन फ्लड लेड बाय डॉक्टर वर्गीस, मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव जो मैंने बोला, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया। ये सप्लाई साइड फैक्टर्स। डिमांड साइड, इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हायर इनकम, emergence of value added dairy products like flavored milk, ये कहाँ से आ गया? Change in food habits like favoring milk consumption, ये तो उल्टा बोल रहे हैं, देखा चैट जीपीटी भी गलत बोल सकता है। हाँ, ये सब तो हमारे इसमें था ही नहीं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत बकवास है, कुछ काम का नहीं है। ये वाला देख लेते हैं जो हमें सेकंड पार्ट चाहिए था, क्या लिखा है। एक्सप्लेन विद अ डायग्राम इम्पैक्ट ऑन मिठाई इंडस्ट्री, increased milk availability boosted मिठाई प्रोडक्शन, लोअर मिल्क प्राइसेस उससे भी सप्लाई इंक्रीज होगा, हायर डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन डिमांड लिखा है। लेटर फेस हेल्थ कंसर्न जब आया तो डिमांड फॉर मिल्क डिक्लाइजेस, तो लेस रॉ मटेरियल फॉर ट्रेडिशनल मिठाई, शिफ्ट टू वेगन, तो डेयरी बेस्ड स्वीट्स का भी डिमांड कम हो जाएगा, दोनों लिख दिया इसने। तो सप्लाई ऑफ डेयरी बेस्ड मिठाई में रिड्यूस ड्यू टू शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो दोनों लिख दिया भाई इसमें तो। और इसके डायग्राम तो बहुत ही बकवास है, कुछ काम का ही नहीं है। D1 to D2 डिमांड फॉर ट्रेडिशनल डिक्लाइंस लिखा है, सप्लाई आल्सो रिड्यूसेस बाद में ऐसा लिखा है। रॉन्ग है इसमें तो, और भी देखा इसने भी दोनों भी लिख दिया कि इनिशियल फेज पे तो ये होगा, फिर लेटर फेज पे क्या होगा, इसने भी दोनों लिख दिया। और डायग्राम तो ये सब देखो ही मत, ये तो कुछ काम का ही नहीं है, इसको तो मैं एक्सपोर्ट करके भी कुछ फायदा नहीं है, राइट? समझा ना शिखा? हाँ हाँ समझा। तो ठीक है, सप्लाई तो इंक्रीज होगा, बट इन्होंने लिखा है बाद में, क्योंकि कंज्यूमर प्रेफरेंस ही अगर नहीं करेंगे, मिठाई खरीदना कम कर देंगे, तो मिठाई तो क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो फिर उसकी सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी ना। वैसा लिखा है लेटेस्ट स्टेज पे, बट हमें ना फर्स्ट वाला ही लिखना पड़ेगा, इनिशियल फेज, बिकॉज द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक। हमें इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई शो करना पड़ेगा, बिकॉज मिल्क डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम अगर आता है तो वो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई है। सप्लाई और डिमांड डिस्टेंस तुम लोगों को मोस्टली सेम रखो, या इतना बड़ा मत रखो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रख सकते हो, राइट? डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, सप्लाई कब इंक्रीज हुआ है हम वो बता रहे हैं, हम वाइस वर्सा भी बता सकते हैं, राइट? तो ये हमारा सेकेंड था केस स्टडी जो 2023 का था, उसका पेपर में सॉल्यूशन है ही नहीं। 22 का तो सॉल्यूशन है, उसमें एक पार्ट में तो उसको अच्छा मार्क्स मिला है, सेकेंड पार्ट में उसको 3 ही मार्क्स मिला है, राइट? फर्स्ट पार्ट में तो उसको 15 में से 13 दिया है, जो पूरा राइट है। अब ये 24 का, इसमें तो एक स्टूडेंट को 91 मिला था, बट वो पेपर मुझे मिल नहीं रहा है उसका, उसने भेजा था मोस्टली, आई डोंट रिमेम्बर, आई विल चेक, तो कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मेरे लैपटॉप में मिला नहीं है। तो देखो 91 भी स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट में से सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाली स्टूडेंट थी, 91 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज वेरी गुड। मतलब 75-80 में भी मैं तो खुश हो जाता हूँ, किसी को आता है 70s भी तो मैं बोलता हूँ अच्छा है, क्योंकि 70 लाके भी ना तुम्हें ए ग्रेड मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में आईबीएस में इजीली। अब ये केस स्टडी है, यहाँ पे क्या है, मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली ड्यू टू इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न। अब देखो वो सीएनजी व्हीकल्स था, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया। This technological forays will bring a revolution in transport industry. The world is marching towards green growth. More countries are committing to reducing their carbon footprints and becoming carbon neutral. Two areas which can cut down emissions for electricity and transport. Electricity और transport से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जनरेट होता है, पॉल्यूशन जनरेट होता है, वो हम कम कर सकते हैं। Producers across the world are making advancements to provide environment-friendly solutions. This solution reduces reliance on fossil fuels
which in turn lead to lower emissions. Companies like Tesla, Nissan, and Volkswagen have invested heavily in expanding their manufacturing facilities. EV market is highly competitive with both established automakers and new entrants. Dying होएगा, V लिखा है dying for market share. The competition डाइंग is की बाइंग, बाइंग फॉर मार्केट शेयर होगा ना, डाइंग तो ना वाइन वाइन का बाइंग। मुझे नहीं पता, मतलब उसका भी वही होता है कि उनको मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है, राइट? ठीक है. This competition has driven innovation and improved product offering. नए नए innovation आए हैं EV में. There are several factors influencing demand. Increased preferences of consumer who want to contribute their part to saving the planet by lesser emissions, and consumers are increasingly opting for EVs due to lower emissions and reduced reliance on fossil fuel. Fossil fuel यानी petrol, diesel and all. The mandate of environmental social governance metrics is prompting many companies to reorganize their fleet of transport for their employees and are opting for electric vehicles. मतलब बहुत सारी कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को पिकअप और ड्रॉप के लिए व्हीकल्स देती है ना, तो वो लोग भी कि सोसाइटी के लिए काम करने के लिए वो लोग भी उसमें ईवी व्हीकल्स ज्यादा यूज कर रहे हैं. The government too is playing its role. It is incentivizing the consumers by giving them EV subsidies, tax breaks, and at the same time is imposing regulatory measures such as emission standards. गवर्नमेंट भी जो ईवी ले रहे हैं उनको डिस्काउंट दे रही है, कंज्यूमर्स को टैक्स में डिस्काउंट दे रही है, और जो पुरानी कार है उसके स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट कर रही है. Despite so many incentives, consumers are switching from traditional vehicles to EV, but the momentum is slow. है. The price of EV remains a significant factor. और ये मूवमेंट स्लो इसलिए है कि EV बहुत महंगी है. Despite subsidies, it remains higher than traditional petrol-powered vehicles. The consumers are delaying purchase of new vehicles and expecting to enter at a right price point. जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस कम हो जाएगा. Electric vehicles, despite their advantages, are beset with their own set of challenges. The supply chain for EV is complex and includes sourcing raw materials like lithium for batteries. और EV के लिए लिथियम चाहिए बैटरीज के, तो ये रॉ मटेरियल भी एक कॉम्प्लेक्स है कि सप्लाई कैसे हम एकदम बढ़ाएं. Stable supply chain has been a challenge for manufacturers. There are very few countries that have lithium reserves, and as more countries advance towards electric vehicles, dependence on lithium reserves will become a challenge. Another challenge for EV penetration is the availability of charging stations. Charging stations भी work कम है. The producers' government are spending a lot to provide easy access to consumers. Since many consumers still have concerns about EVs, such as range anxiety and charging infrastructure, despite these challenges, the outlook towards EV remains positive. Continued innovation and supportive policies will be crucial for the future growth and adoption of electric vehicles globally. Continued advancement in battery technology and government policy support to reducing green emissions will play a critical role in increasing EV penetration. अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ये टोटल कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स ईच है, ऐसे हम बोल सकते हैं. How do consumer preferences for environmental friendly transportation impact the demand curve for electric vehicles compared to traditional petrol powered vehicles? तो ये तो बहुत सिंपल है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर प्रिफर करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिमांड कर्व पे क्या इम्पैक्ट होगा. ये तो तुम्हें भी आता होगा, आप शिखा. क्या होगा? डिमांड फॉर ईवी विल इंक्रीज, है ना? तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. फिर गिवन द प्राइस ऑफ पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स इज लोअर देन ईवी, कि ईवी के प्राइसेस ज्यादा है, पेट्रोल और इसके कम है, तो हाउ वुड रिडक्शन in consumer subsidies for EV impact demand for EV and petrol powered vehicles? इसमें डायग्राम भी नहीं बोला है बनाने.
लेकिन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स की प्राइस कम है ईवी से, और जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी भी कम कर दिया, तो ईवी व्हीकल्स पे और पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स के डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर उसका कम कर दिया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सब्सिडी कम की है गवर्नमेंट ने, तो ओके, सब्सिडीज कम सब्सिडी कम की। किया है, मतलब प्राइस बढ़ेगा ईवी का और पहले ही हाँ, महंगा, और फिर तो डिमांड ईवी कम हो व्हीकल जाएगा, का डिमांड कम होगा और पेट्रोल पावर्ड व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा हमें इसमें लिखना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स ही है। तो डायग्राम बना सकते हैं ना इसमें अगर बनाना ये होगा। नहीं बनाना है, क्योंकि या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अलग बनाना पड़ेगा और पेट्रोल व्हीकल का अलग, है ना। बट ऐसे लिखा नहीं एक्सप्लेन विद द डायग्राम, बट बना सकते हैं। बट देन दोनों तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, तो मतलब यूज हो बना सकते हैं ना हम तो दोनों एक ही बना में। सकते हैं, बट दोनों का डिमांड कर्व तो अलग रहेगा ना, हाँ हाँ, एक समझ। भी नहीं बना सकते। तो ठीक। न्यू, अभी क्या, न्यू फाउंड डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन अबेंडेंट मेजर्स। लिथियम मिल गया नया, और लिथियम का शॉर्टेज था जिससे सप्लाई कम था, तो इससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो availability of lithium will increase the production, supply of EV vehicles will increase, right? यस यस। फिर widespread charging station and technological improvement in batteries, सप्लाई बढ़ जाएगा फिर से। सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा, ओके, समझा। क्योंकि वाइड स्प्रेड चार्जिंग स्टेशन नहीं था, वो भी एक रीजन था कि लोग ईवी नहीं खरीद रहे, राइट। हाँ, तो देखो सिंपल है कि सप्लाई इंक्रीज है, इसमें इसमें सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज है, इसमें ईवी का डिमांड कम होगा, राइट, है ना, और इसमें ईवी का डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा। दो डिमांड पे इफेक्ट है, ये दो सप्लाई पे है, दोनों में सप्लाई बढ़ेगा मुझसे, और इसमें डिमांड भी बढ़ेगा, बिकॉज द फैसिलिटी इज ना अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। मतलब केस केस काफी बड़ा था पढ़ने में, बट देन पढ़ने बहुत में इजी बढ़ा था, था। बट इसका आंसर देखो सिंपल था। इसने हाँ बोला कि लास्ट ईयर 91 भी आया है ना। हाँ, वो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा तो फिर मतलब सिर्फ नहीं होता, पहले पैनिक हो जाते लोग एकदम से पढ़ के। ठीक है, इसका भी चैट जीपीटी करके देख लेते हैं, अगर पिछले केस स्टडी का तो बहुत बकवास आंसर दिया था चैट जीपीटी ने, इसका पता नहीं। ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा ना केस का। हाँ, एक बार मैं ऐसे ही डाल के देख रहा हूँ, कुछ राइट दे रहा है तो वो 2 इमेज लेना पड़ेगा वैसे तो। फिर एक बार मैं देखता हूँ पहले डाल के कुछ राइट आंसर दे रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ ना कि चैट जीपीटी ने रॉन्ग आंसर दिया है, मतलब नहीं प्रॉपर नहीं, आपके साथ नहीं क्या होता। हमारे साथ भी हुआ है, ये आंसर तो गलत दे चैट देगा। जीपीटी ऐसे 100% रिलायबल नहीं है, बट क्योंकि 90-95% रिलायबल है। क्योंकि कहीं से तो ये भी तो दे रहा है ना रिसोर्स ढूंढ के, वहां पे भी आउटपुट, गलत हो ही सकता है। तो इंक्रीजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर इको फ्रेंडली causes a rightward shift in the demand curve, ये तो राइट है। Simultaneous demand for petrol powered vehicles decreases, causing a leftward shift in their demand curve, पेट्रोल व्हीकल का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम तो देखो इसने रॉन्ग ही बनाया, कुछ काम का नहीं है। फिर ये गिवन द प्राइस ऑफ पेट्रोल पावर्ड व्हीकल लोअर, तो यहाँ दिया रिडक्शन इन ईवी सब्सिडी विल मेक ईवी रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, रिड्यूसिंग कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी, तो देयरफॉर डिक्रीज इन डिमांड, राइट, जो मैंने बोला है ना। बट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, मैंने तो हिंदी में बोला, इसलिए मैंने खाली ये ले लिया। तो इन कॉन्ट्रास्ट डिमांड फॉर पेट्रोल व्हीकल में इंक्रीज एज दे बिकम अ मोर इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट। तो वही हमने बोला कि ईवी का डिमांड कम होगा, पेट्रोल का इंक्रीज होगा। डायग्राम बनाना है तो इसका लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इसका राइट में शिफ्ट करना है। फिर लिथियम से तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई विल रिड्यूस इनपुट कॉस्ट फॉर ईवी बैटरीज, क्या लिखा है? Abundant lithium supply will reduce input cost. Will reduce input cost. This will result rightward shift in the supply curve. Supply increase होगा. Lower price will likely stimulate higher demand and increase EV adoption. Widespread charging station से भी battery advancement. This increased consumer confidence. So rightward shift in demand and rightward shift in supply. तो मैंने बोला right ही है। यानी हमारा इसमें तो right था, right? तो इसको तो हम लोग ले लेते हैं कि तुम्हें वर्ड्स तो मिल जाएंगे जो लिखने हैं, वैसे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं सिंपल इंग्लिश, इसमें तो थोड़ा हाईफाई है।
और डायग्राम तो बता ही दिया कि इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है। तो क्लियर है ना सबको? हाँ जी। तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, केस स्टडी तुम्हें तो आ ही जाएगा, बाकी लोगों को भी आ जाएगा। ये 3 पेपर देखो और ऐसे ही कुछ वो लोग लेटेस्ट लेते हैं। अभी और क्या लेटेस्ट है वो तुम लोग देखो, ईवी आ गया, सीएनजी आ गया, मेरी प्रोडक्ट तो एक अलग था। अभी रिसेंट डॉट क्या हुआ है, मेरे को भी 2-3-4 महीने या 6 महीने में इन 2025 हम्म। तो थोड़ा दिखना पड़ेगा क्या इवेंट्स हुए हैं। डिफेंस प्रोडक्ट्स वगैरह का भी हो सकता है, या आजकल क्या चल रहा है, सोलार पैनल्स का भी आ सकता है। सोलार पैनल्स वगैरह का आता है ना हाँ हाँ। आजकल बहुत सारे न्यूज में। और भी देखते हैं क्या है, सोलार एनर्जी ऐसे बहुत आजकल यूज हो रहा है। तो हम्म। केस स्टडी हार्ड नहीं होगा, उसके लिए खाली ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, विच इज वेरी इजी, राइट? क्लियर? यस। तो ये तो तुम लोगों का हो ही जाएगा। और इको में भी थोड़ा बहुत बचा है, तुम लोग सिलेबस पूछ लो, अभी बहुत कम टाइम बचा है। और सिलेबस ना मुझे बता दो तुम लोग, ताकि आई कैन कवर